Hello students, I am Ranjit sir. I have brought you the first chapter, the first lesson from your book Beehive. The story is written by Isaac Asimov. He was an American writer but born in Russia, and he is one of the greatest science fiction authors. Let's begin the chapter. Here is the chapter. Yeah, this is it. Margie even wrote it that night in her diary on the page headed May 17, 2155. She wrote, "Today, Tommy found a real book." We came to know that Margie used to write a diary every day. It was the day 17th May and the year was 2155. It means 137 years later from now. She wrote in her diary that Tommy found a real book. He had found a real book. Real book means the book which we have. मार्गी को आदत थी डायरी लिखने की और उसने उस दिन भी डायरी लिखना शुरू किया था। उसने डायरी में लिखा 17 मई था और 2155 यानी कि लगभग आज से ये जो बच्चे पैदा हुए हैं कब की बात है, ये आज से लगभग 150 साल बाद की बात है कि उसने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिला। आज मीन्स 17 मई 2155 को, और वह बुक बहुत पुरानी थी। द रियल बुक वॉज वेरी ओल्ड। मार्गिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गिस के ग्रैंडफादर ने कहा था कि पहले के ज़माने में कहानियाँ जो है वो पेपर पे प्रिंट होती थी, एंड दैट इंफॉर्मेशन वाज गिवन grandfather. Margis told by her grandfather that all the stories were printed on paper. ये जो फैक्ट है कि स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी, ग्रैंडफादर ने बताया था मार्गी को, राइट। बट ग्रैंडफादर को किसने बताया था? ग्रैंडफादर को इनके ग्रैंडफादर ने बताया था, राइट। Clear? Okay. Now proceed. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Here is crinkly. Crinkly means with many folds on a surface, and U stand for diary. Here stands for diary. So now Margie wrote in the diary that they turned the pages. They started turning the pages, and those pages were yellow and crinkly with some folds. So those pages were with some folds, and it was awfully funny to read words, and it was very funny to read words. उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही फनी था, बहुत ही मज़ेदार था। क्यों मज़ेदार था? बिकॉज those words were still, those words were not moving or floating. वो जो words थे पेज पे वो मूव नहीं कर रहे थे, तैर नहीं रहे थे, फ्लोट नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके बदले क्या, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। जबकि अभी तक जो उन्होंने किताबें पढ़ी थी यानी स्क्रीन पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे, वहाँ क्या होता था? दोज वर मूविंग, फ्लोटिंग। उस समय वर्ड्स जो घूम रहे थे, तैर रहे थे। एंड देन
When they turned back to the pages before it, the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर से जब उन्होंने किताब को अलट पलट के देखा, यानी फिर पीछे की तरफ उन्होंने पलटा, तो दे वर सरप्राइज्ड कि वे जो वर्ड्स थे वो फिक्स थे, दे हैव नॉट चेंज देयर प्लेस। जबकि अभी तक इन ऑन स्क्रीन जो होते थे उसके जो वर्ड्स के प्लेस थे वो बदल जाते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स ने प्लेस अपना नहीं बदला था, दोज वर्ड्स वर फिक्स ऑन द पेजेस, और वो वैसे ही था जबकि वो पहली बार उन्होंने देखा था। नेक्स्ट पैरा इज जी, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड। Said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. अज्यूम करता है, कौन अज्यूम करता है? टॉमी। टॉमी कहता है कि जब आप इस बुक को पढ़ते हो, when you go through the books, जब उसे पढ़ते हो तो आप इसे फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि आपके किसी काम का नहीं, इट्स अ वेस्ट, इट्स अ यूजलेस। Our television screen must have had 1,000,000 books on it. It's good for plenty more. And further he says that कि they have more than 10 lakhs books on television screen. उनके पास लाखों किताबें हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, और यह बुरा नहीं होगा अगर वो कुछ और किताबें रख लें। I wouldn't throw it away. So Tommy said that he will not throw it away. They throw it away means the real book. Tommy will not throw the real book away. Same with mine, said Margie. Margie कहती है कि yes, I am feeling the same. It means Margie said that she will also not throw the real book away. She also wants to preserve the book. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Tommy had read many books. It means more than Margie's, because he was 13 and Margie was only 11. So 2 years, Tommy was 2 years older than Margie. टॉमी ने मार्गी से कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? क्योंकि वो 2 साल उससे बड़ा था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। इन माई हाउस, इन द एटिक। उसने कहा कि आई गॉट दैट बुक, आई फाउंड दैट बुक इन माई स्टोर रूम। एटिक, एटिक इट्स अ प्लेस वेयर समथिंग इज स्टोर्ड। और उसने यह बात कैसे कही? वो किताब पढ़ते हुए उसने जो वो टॉमी वॉज बिजी इन रीडिंग द बुक, सो ही डजंट रेज हिज हेड, एंड विदाउट लिफ्टिंग हिज हेड he said he just pointed towards the attic. What's it about? Now Margie asked a question. What's it about? She got answer by Tommy that it was about school. ये किस बारे में है? पूछती है, मार्गी पूछती है किस बारे में किताब है? तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होती है, लेकिन वो खुशी वाली आश्चर्यचकित नहीं है, थोड़ी वो परेशान होने वाली। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? व्हाट इज देयर एनीथिंग टू राइट अबाउट स्कूल? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू राइट अबाउट स्कूल? ऐसा क्या है कि स्कूल के बारे में लिखा जाए? I hate school. Margie always hated school. So she expressed her feeling that she hates school. She hates schools. And she hated schools. But now she hated it more than ever. But now she started hating school more than ever. अब वो जो है, अभी जो स्कूल से जो इसने
वो पहले भी स्कूल पसंद नहीं करती थी, स्कूल से घृणा करती थी। क्यों घृणा करती थी वो हम आगे जानेंगे, फर्दर स्टोरी में हम देखेंगे। और वैसे घृणा तो आप भी करते हो। किसको पसंद है स्कूल आना? बच्चे को, किसी बच्चे को स्कूल आना पसंद तो नहीं, आपको भी तो नहीं होता ना। बट मुझे मालूम है आपको भी नहीं आता। अगर पेरेंट्स कह दें कि स्कूल मत जा तो यू विल बिकम हैप्पी, राइट? ओके, ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्गी पसंद नहीं करती स्कूल को, स्कूल से घृणा करती है। शी हेट्स स्कूल। और वो क्यों, अब तो वो और भी ज़्यादा करने लगी है, और भी ज़्यादा करने लगी। क्यों करने लगी इसे हम आगे देखेंगे। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. So here is the answer why he hated why she hated school. Why? Here is the answer. Because the mechanical teacher is here. Who is the mechanical teacher? It's a computer. It's not a human being. Mechanical teacher, it's a human, not a human being, it's a computer. So the mechanical teacher was giving her test after test after test after test in geography, and she was totally fed up, disappointed. She was very worried because she was not doing well. Rather doing well, she was getting worse and worse in geography. So her mother was worried. She was sad. That's why she called for a county inspector. Who is the county inspector? County inspector is the man who will check the computer, who will check the technical teacher whether it is working well or not. इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि मार्गी स्कूल से घृणा करती थी। क्यों करती थी? और अब तो वो और भी ज़्यादा करने लगी थी। क्यों करने लगी थी? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट वो देता जा रहा था। और किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में। और वो ज्योग्राफी में और भी बुरा करती जा रही थी। वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। शी वॉज नॉट डूइंग वेल। अच्छा करने से बेहतर, रादर डूइंग गुड, रादर डूइंग वेल, शी वॉज गेटिंग वर्स एंड वर्स। और वो बद से बदतर होती जा रही थी। और यह सब देख के हर मदर वॉज वेरी सैड। उसकी मदर बहुत दुखी थी। शी वॉज वरिड फॉर हर डॉटर। अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित थी। तो उसने क्या किया? उसने बुला भेजा किसे? काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा? क्या वो फिल्म दिखाएगा आपको? नहीं। तो आपके साथ खेलेगा? कभी नहीं। तो क्या करेगा वो? काउंटी इंस्पेक्टर चेक करेगा। किसे चेक करेगा? मैकेनिकल टीचर को, कि क्या वो सही से काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at her and gave her an apple, then took the teacher apart. So the county inspector was a little man. वो छोटा व्यक्ति था, छोटे कद का। Face was red, उसका चेहरा लाल था। And there was a tool box in his hand. उसके हाथ में क्या था? एक टूल बॉक्स था जो कंप्यूटर को ठीक करने के लिए उसके पास सामान थे। वायर वगैरह था। डायल्स इट्स अ डिवाइस जिससे हम मेजर करते हैं टाइम को। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। सो जब मार्गी को उसने देखा, किसने देखा? काउंटी इंस्पेक्टर ने। तो उसने उसे मुस्कुराया देखकर, स्माइल्ड एट हर, और उसे प्यार से उसने क्या दिया? एक एप्पल दिया। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो कंप्यूटर टीचर था, यानी कि
जो मैकेनिकल टीचर था उसे चेक करने लगा, उसे खोल दिया। बट मार्गी हैड नॉट होप दैट ही विल फिक्स द कंप्यूटर विद इन एन आवर। लेकिन उसे आइडिया नहीं था मार्गी को कि 1 घंटे के अंदर ही वो कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। उसने सोचा था, उसने अनुमान लगाया था कि ये फिक्स नहीं कर पाएगा तुरंत। लेकिन उसके जस्ट उसकी सोच के अपोजिट द थिंग्स हैपेंड। उसने जो सोचा नहीं था वो हुआ जस्ट लगभग 1 आवर के बाद। देयर इट अगेन, और फिर से देयर इट अगेन, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली विद a बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शॉन। और फिर से अगेन the large, black and ugly big screen was before her to give her lessons, to give her to ask questions। फिर से उसके सामने मौजूद हो गया आफ्टर 1 घंटे के बाद, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। उसका चेहरा उसे अगली लगता था और वो ब्लैक सा, बड़ा सा ब्लैक चेहरा, जैसे कोई इंसान हो, कोई ब्लैक मैन, और बहुत कुरूप हो, वैसा उसे मार्गी को लगता था। दैट वॉजंट सो बैड, बट ठीक है, कंप्यूटर जो मैकेनिकल टीचर था, इट हैड बीन रिफिक्स्ड बाय द काउंटी इंस्पेक्टर, बट दैट वाज नॉट सो बैड। यह बुरा, उतना बुरा नहीं था। तो इससे भी बुरा क्या हुआ, द पार्ट शी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. Here is the word slot. It's a place, it's a drawl, like a drawl, slot. सबसे बुरा था उसे क्या, उसे सबसे ज़्यादा उसे जो घृणा थी, जो उसे नफरत करती थी, वो क्या थी, वो जो कंप्यूटर में, जो मैकेनिकल टीचर में जो स्लॉट होता था, एक प्लेस होता था जहाँ पे वो पूरे के पूरे होमवर्क सबमिट करती थी, टेस्ट पेपर सबमिट करती थी। So that part was the very hateful for him. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. That was not bad. She always had to write them. और उसे क्या करना होता था, उसे हमेशा लिखना होता था इन ए पंच कोड। पंच कोड, इट्स अ, व्हाट इज a punch code? Punch code is a piece of stuff paper that can be used to contain digital information represented by the process or absence of hole in predefined positions। वो क्या होता है, एक दिस इज एक पीस ऑफ स्टफ होता है जिसपे कई सारे होल होते हैं, जिससे कंप्यूटर रीड करता है, वो पंच कोड होता है, और उसी से कॉपी, होमवर्क या टेस्ट पेपर चेक करता है। वो उसकी लैंग्वेज है जो वो कंप्यूटर समझता है, और वो पहले से वो जो होल्स होते हैं उसके पोजीशंस पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, फिक्स किए होते हैं, वो होता है पंच कोड। तो उसे लिखना होता था और फिर कौन पंच कोड में के तौर पे उसे सबमिट करना होता था, उसे लर्न करना भी होता था पंच कोड। और पंच कोड के बारे में उसने तब से सीखना शुरू कर दिया था जब वो व्हेन शी वाज ओनली 6 years old। और जो मैकेनिकल टीचर था जब भी टेस्ट लेता तो वो तुरंत मार्क्स उसे देता, कैलकुलेट कर देता विद इन नो टाइम। Next is the inspector had a smile after he was finished and patted her head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones, Mrs. Jones." Patted, it's a tap. Suppose if you put something or someone, you tap them lightly, usually with your hand held flat, जैसे थपथपाना कहते हैं उसे कहते हैं। तो आफ्टर 1 hour क्या हुआ, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, व्हेन ही वाज डन विद द मैकेनिकल टीचर, व्हेन ही हैड
refixed the computer, the mechanical teacher, he smiled, the inspector smiled, वो मुस्कुराया and मार्गी के हेड पे थोड़ा थपथपाया, टैप किया. He said to her mother, and what he said to her mother? He said to her mother that it was not the Margie's fault. It means he was trying to convince her mother that if Margie was doing not well in geography, that is not her fault. अगर वो अच्छा नहीं कर रही है तो वो उसकी गलती नहीं है, but he thinks the geography sector was geared a little too quick. क्या कहता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी. Those things happen sometimes and it happens. Such kind of thing happens sometimes. और ऐसा कभी कभी होता है, स्पीड बढ़ जाती है खुद से ही. I have slowed it up to an average 10-year level. और कहता है कि मैंने इसे लेवल को स्लो कर दिया है, उसके स्पीड को स्लो कर दिया है और उसका लेवल जो है 10-year चाइल्ड के लेवल पे कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. असल में देखा जाए तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो प्रोग्रेस है मार्गी का, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री. there is nothing to worry. And he patted Margie's head again. And फिर से उसने प्यार से मार्गी के सर को थपथपाया. Margie was disappointed, but this time Margie was not happy. So in the next video we will know why Margie was disappointed, why she was not happy. The question, the secret will be disclosed, will be revealed in the next video. Have a good day.